हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 64 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इजी पेपर है। यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो 4 क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट कैटेगरी की क्वेश्चंस कैटेगरी में रखा है, 24 क्वेश्चंस मीडियमली डिफ़िकल्ट है, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है एंड 17 क्वेश्चंस इजी हैं। तो 150 प्लस स्कोर इज़ अ गुड स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. 1 milligram has this much of atoms, half-life is this. How many radium atoms will disintegrate from 1 milligram of pure radium in 3240? So the time interval given is T is twice of T half. And disintegrated पूछे हैं अपने से, तो रिमेनिंग एटम्स नहीं पूछे हैं, ध्यान रहे disintegrated पूछे हैं. So N is N naught minus disintegrated, which is N naught by 4. So that is 3 N naught by 4. So 3 by 4 and N naught given है, so 2.68 into 10 to power 8. कैलकुलेशन करने पे easily अपना 2.01 आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखें. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो n equals 4 to n equals 3, and then second excited state to the first, so n equals 3 to n equals 2. So 1 upon lambda 1 is r 1 by 4 square minus 1 by 3 square, and 1 upon lambda 2 is r 1 upon 3 square minus 1 upon 2 square. तो ये सिंप्लीफाई करने पे अपना आ रहा है 3 square 2 square minus 3 square, and this is 3 square minus 4 square. So this is coming out 16 minus 9, 7r upon 16 into 9, and this is coming out 9 minus 4, 5r upon 9 into 4. So lambda 2 upon lambda 1 is 7 into 9 into 4 upon 16 into 9 into 5. So 9 4, so lambda 1 upon lambda 2 is 20 by 7. थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, सो मॉडरेट डिफिकल्ट की कैटेगरी में है. 2 blocks 10 kg 30 kg placed along a vertical line, 10 kg raised through 7, the distance through which other mass should be raised to raise the center of mass by 1 centimeter. So delta y of cm is m1 delta y1 plus m2 delta y2 upon m1 plus m2. So m1 plus m2 is given 40. So 40 into 1 centimeter is equal to 10 into 7 plus 30 into delta y2. So delta y is to be coming out minus 1 centimeter. That means 1 centimeter down. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. बॉडी ऑफ मास m1 v1 आए, m2 v2 आए, आफ्टरवर्ड्स v3 आए, v4 आए, और हमें रिलेट करना है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. m1 हमें गिवन है, m2 गिवन है 0.5 m1. सो m1 v1 plus m2 which is 0.5 m1 into v2 is m1, and v3 is given, v3 is 0.5 v1, so 0.5 v1 and plus m2 which is 0.5 m1 into v4. तो हम रिलेट करें तो ये हमारे पास m1 पूरे में से कैंसिल हो रहा है, 0.5 से डिवाइड भी कर दें, सो 2v1 प्लस v2 is equal to v1 plus v4. So we are supposed to find out v1, so v1 is v4 minus v2, so v4 minus v2. तो मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r वेरीज एज दिस, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन. सो नेट एक्सेलरेशन a net is dv by dt का होल स्क्वायर प्लस v square by r का होल स्क्वायर अंडर रूट. So dv by dt, guys, we are seeing dv by dt is 2t, so 2t का whole square, and v square, that is t4, so t4 upon r square under root. So that is 4t square, t square is 4, t square is 4 plus t4, that is 16 upon r square, which is 4. So 2t, just a minute, 2t का square, so 4t square, so 4 into 4 16, and t raised to power 4, v square का whole square, so v square का whole square, actually this is t4 का square, so this is 16 into 16 by 4, so this is 64 plus 16
80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इलेक्ट्रिक फैन हैज़ ब्लेड्स ऑफ लेंथ दिस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस, फैन इज रोटेटिंग एट दिस द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, सो ओमेगा इज 1200 RPM, so rotation per minute, so 1200 into 2 pi by 60 radian per second, so this is 40 pi radian per second. Now acceleration is omega square r, so that is 1600 pi square, and r is 0.3, so 480 pi square को approximately 10 लीजिए तो 4800, तो नियर अबाउट 47540. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इन द सर्किट डायग्राम बी सी डी का वोल्टेज हमें बताना है. एक पॉइंट का वोल्टेज मेंशन है, तो ग्राउंड ये 0 है, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे ये 6 वोल्ट है और यहाँ पे ये 12 वोल्ट है. करंट जो सर्किट में फ्लो होगी इस तरह से फ्लो होगी, और सर्किट में जो करंट आ रही है आई, दैट इज 12 माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, सो दैट इज 6, so 1 ampere. We know moving in the direction of current, voltage decreases in resistor, so 12, so B का voltage 12 minus VAB is 1 into 1, so voltage 1 से डिक्रीज होगा तो A का वोल्टेज हमारा है 12 वोल्ट, तो B पे 1 से डिक्रीज होगा तो 11 वोल्ट. फिर VBC is 2 into 1, तो यानी कि 2 वोल्ट से डिक्रीज होगा तो VBC 9 वोल्ट, एंड डी का हमें मालूम है 6 वोल्ट, तो बी सी डी, सो 11 9 6. तो थोड़ा सा सोचना है, वैसे सॉल्वेबल है. इन द सर्किट शोन इन फिगर वी मस्ट बी, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, हमें ऐसे पॉइंट्स को मार्क कर देना है. तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट भी सी है, और ये पॉइंट डी है, तो ये पॉइंट भी डी है. ऑलराइट, तो 20 ओम, 100 ओम एंड 25 ओम आर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D. सो C और D के बीच में 20 ओम, 25 ओम एंड 100 ओम, 100 ओम, 25 ओम एंड 20 ओम. एंड देन ये तो C और D के बीच में है, और A और C के बीच में 4 ओम है, एंड देन D और B के बीच में 6 ओम है. ये हमारा बी हो गया. तो 100 इंटू 1, इन दोनों को क्लब करें पहले, तो 25 इंटू 100 अपॉन 25 प्लस 100, 20 ओम आ रहा है, और फिर 20 ओम, ये पूरा सॉल्व करने पे हमारा 10 ओम आ रहा है. तो इक्वलेंट इन तीनों का 10 ओम आ रहा है. सो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम, और जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पेयर फ्लो हो रही है. सो वोल्टेजेस आर इक्वलेंट इनटू आई, सो 20 इंटू 5 दैट इज 100 वोल्ट. तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैंने इसको डाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें. करंट अपने को गिवन है और वो इंडक्टेंस गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. सो V इज L di बाई डी टी, सो L इज 2 एंड di बाई डी टी, सो d बाई डी टी ऑफ t साइन t. तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले t डिफ्रेंशिएट होगा, साइन t एज इज रहेगा, और फिर t एज इट इज रहेगा, और साइन t डिफ्रेंशिएट होगा. तो ये आ रहा है हमारे पास में 2t cos t प्लस 2 sin t. तो सॉल्वेबल है, प्रोडक्ट रूल आता है हमें, तो इसलिए कोई डिफिकल्टी नहीं है. वायर बेंट है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, सेमी सर्किल है, इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो गाइज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रेट लेंथ जॉइनिंग एंड पॉइंट्स. तो यहाँ पे इस पूरे वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेमी सर्किल को इस स्ट्रेट वायर से. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो 2a लेंथ की रॉड अपने एंड के अबाउट घूम रही है, P एंड के अबाउट घूम रही है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा B ओमेगा 2a का स्क्वायर अपॉन 2, सो दैट इज 2b ओमेगा a स्क्वायर. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें याद रखना है इसको. 3 चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ABC, एंड अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है. सो ये सपोज हमारा ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में A पे प्लस 2q है, B पे भी प्लस 2q है, और C पे माइनस 4q है. ओके, तो माइनस 4q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक माइनस 4q इधर वाले प्लस 2q के साथ डाइपोल बनाएगा. सो एक डाइपोल ऐसे होगा,
P1 और दूसरा वाला -2q इधर +2q के साथ डायपोल बनाएगा ये P2 और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो P1 और P2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो इसीलिए Pnet इज ट्वाइस ऑफ P1 cos 60 डिग्री बाई 2 दैट इज √3 P1। P1 की वैल्यू हमें मालूम है 2q into side length which is x, so 2√3qx, so D is the correct option। तो moderately difficult में है। Which of the following is true about linear isotropic dielectric? तो linear isotropic dielectric में जो पोलराइजेशन होगा, जो डायपोल मोमेंट आएगा, एक्चुअली यदि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो डायपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है। सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन लेंगे। Planet revolves around the sun, the linear speed, so we know from angular momentum conservation VRA बराबर VCRC at the closest point A. At the closest point A, potential energy is minimum, so kinetic energy is maximum. So perigee पे speed maximum होगी, straightforward question है। The radii of two planets are R1 R2, density is ρ1 ρ2, G at the surface। तो G की expression हम लोग use में लेंगे, G at the surface is 4/3 pi rho g capital R, so proportional to R rho, so G1 upon G2 is ρ1 R1 upon ρ2 R2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 150 joule of energy is incident, so 2 meter square, Q reflected, Q absorbed, so Q absorbed is absorption coefficient into Q incident, so that is 0.6 into 150, which is 90 joule। Now we know Q incident is equal to Q absorbed plus Q reflected plus Q transmitted। So Q transmitted is Q incident minus Q absorbed minus Q reflected, so this comes out to be 45 joule। ये पहले भी एक टेस्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। The thermodynamic system is taken through the cycle, heat rejected by the gas during the cycle। Actually या तो यहाँ पे net heat लिखा हुआ होना चाहिए, तो heat rejected, तो heat तो actually हम देखें यहाँ पे तो DA में heat reject, CD में heat reject हो रही है, CD में heat reject हो रही है, एंड DA में heat reject हो रही है। इन दो प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। AB आइसोबारिक एक्सपेंशन है एंड BC आइसोकोरिक हीटिंग है, तो इन दोनों में हीट गेन हो रही है। सो एक्चुअली हीट रिजेक्टेड इज QCD प्लस QCD प्लस QDA। सो QCD निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि गैस एक्चुअली ये मोनोएटमिक है, डायटमिक है, गैस की प्रोफाइल गिवन होनी चाहिए हमें, गैस कौन सी है। जो NTA ने सॉल्व किया है वो एक्चुअली नेट हीट के लिए सॉल्व किया है, नेट हीट इज इक्वल टू वर्क डन। तो मैं इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोलूँगा, या तो नेट हीट लिखा हुआ होना चाहिए या फिर हीट रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो फिर उस केस में हमें क्लियरली केवल वही पार्ट्स लेने हैं जहाँ पे हीट रिजेक्ट हुई है, अदरवाइज नेट हीट लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं एम्बिग्यूटी बोल रहा हूँ। 17 क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें गिवन है और TC गिवन है और TH की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अल्फ़ा वी नो अल्फ़ा इज QC अपॉन W, दैट इज QC अपॉन QH माइनस QC, दैट इज TC अपॉन TH माइनस TC। सो 5 इक्वल्स TC अपॉन TH माइनस TC, so that is TH equals 6/5 TC, so 6/5 और TC की वैल्यू गिवन हमें 273 माइनस 20 दैट इज 253। तो ये हम सॉल्व करने पे 5 5 25 0 50.6, so this is 6 6 36 6 3 6 5 30, so 303 point Kelvin, so that is 30.60 डिग्री सेल्सियस विच इज 31 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, वैसे इजी क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड रेडियस। सो गाइज रेडियस इज mv/qb, दैट इज √2 km/qb, सो प्रोपोर्शनल टू √k। तो काइनेटिक एनर्जी डबल की है
तो जो रेडियस है वो हमारी √2 टाइम्स हो जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी। 19th, magnetic field due to current carrying circular loop of radius this at this is 54. What is the value at the center of the loop? So B center is mu naught Ni upon 2r, and B axis is mu naught Ni r square upon 2r square plus x square to the power 3 by 2. So BC upon B axis is r square plus x square to the power 3 by 2 upon r cube. So r square plus x square, so 6 square plus 8 square to the power 3 by 2 upon, नीचे रेडियस हमें गिवन है 6, so 6 cube which is 216. So that is 1000 upon 216 BC into B axis. B axis हमें गिवन है 54. So this is 5 times 54. So 250 के अराउंड एक ही नंबर है हमारा. So D is the correct option. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है बट वैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. 20, 2 बार मैग्नेट्स हमें गिवन है जिनके मैग्नेटिक मोमेंट्स हमें गिवन है. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, यदि हमें जो रिजल्टेंट सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में चाहिए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आना चाहिए. बी नेट इस तरफ आना चाहिए. सो tan थीटा इज √3m upon m, that is √3. so theta is 60 degree. गाइज ये हमारा m है और ये √3m है और ये रिजल्टेंट फील्ड के अलोंग आना चाहिए इस तरह से. ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है. ओके, सो tan थीटा इज √3m upon m, so that is √3. theta is 60 degree. Now next 21st question, body is dropped from rising balloon. तो rising balloon से ये सपोज बास्केट है और यहाँ से ये बलून अटैच्ड है एंड दिस होल सिस्टम इज मूविंग अप. एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये पर्सन बी है और ग्राउंड पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये पर्सन ए है. जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो अ स्मॉल बॉडी इज ड्रॉप्ड. सो suppose balloon is moving with velocity v. So u of body relative to a will be v up and acceleration of b relative to a is g downwards, and u of body relative to b is 0, इन्होंने ड्रॉप किया है, and acceleration of body relative to b is g downwards. तो गाइज देखिए, ए ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल वेलोसिटी अप है तो ए ऑब्जर्वर के लिए बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, और जबकि बी ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन की वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जाएगी. तो ए फील्स दैट द बॉडी इज गोइंग अप व्हाइल बी फील्स दैट द बॉडी इज गोइंग डाउन. तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को देखना है अपने को. ट्रेजेक्टरी y गिवन है, अपने y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पूछिए. सो y इज ax माइनस bx स्क्वेयर. इसको अपन कंपेयर करें, x tan थीटा माइनस gx स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. तो हम देख रहे हैं tan थीटा बराबर a, सो थीटा इज tan इनवर्स a. तो एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए कि एक ही ऑप्शन ऐसा है क्या. तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स a, दो ऑप्शन दे रखे हैं. अब मैक्सिमम हाइट के लिए dy बाई dx इज a माइनस 2bx इज इक्वल टू 0. सो x इज a बाई 2b, मैक्सिमा निकाल रहे हैं हम लोग. सो y मैक्स इज a इंटू ए बाई 2b माइनस b इंटू ए बाई 2b का स्क्वेयर. सो दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वेयर बाय 4b. सो c इज द करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. यूनिफॉर्म रॉड है एंड वैल्यू ऑफ t निकालनी है फॉर इक्विलिब्रियम. तो जो mg है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और टॉर्क बैलेंस करें तो mg इंटू एल बाई 2 इक्वल्स t इंटू एल. सो t इज mg बाई 2. So 10 Newton. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है टॉर्क बैलेंस का. मैन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन. इनिशियली द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग. सो व्हेन एक्सेलरेशन इज अप, n is mg plus a apparent weight, and when acceleration is down apparent weight is mg minus a. तो हमें गिवन है कि सेकेंड टाइम में जो apparent weight है that is 10% of initial apparent weight. So that is mg minus a is 1/10 of mg plus a. सॉल्व कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ रही है हमारी 9g/11. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है.
If the half life of a radioactive element is 10 hours, then its average life. So we know average life is tau average is 1 by lambda and tau half is ln2 by lambda. So that is ln2 into tau average. So tau average चाहिए तो tau average is ln2 by lambda. So that is ln2 into tau average. So tau average is tau half upon ln2, that is 10 upon 0.7. So that is 14.4 hours. 26th question देखें. At some instant the ratio of two radioactive elements is 2:1 if their half lives are this, and then after 2 days, so small t is 4 times t1 half and 3 times t2 हाफ. फर्स्ट की हाफ लाइफ का 4 टाइम्स है, क्योंकि टाइम जो दे रखा है वो 48 आवर्स दे रखा है, तो 12 आवर्स का वो 4 टाइम्स है और 16 आवर्स का वो 3 टाइम्स है. सो n1 अपॉन n2. सो n1 इनिशियली 2n0 है एंड आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स ये बचेगा हमारा 2n0 बाई 16 एंड n2 हमारा n0 है एंड आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ये बचेगा 1 बाई 8 टाइम्स. सो दिस इज 1:1. सो आंसर इज 1:1. Simple harmonic motion, then the location of the particle from its mean position at x equals 1/8 of a second. So location, so x at t equals 1/8 second is a sine 2 pi into 1/8, so pi by 4, so that is a by root 2. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 28th देखें, xt ग्राफ गिवन है और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स 4/3 सेकेंड्स. तो गाइज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो हमारा 8 सेकेंड्स है, तो ओमेगा 2 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4 सेकेंड इनवर्स, ये ओमेगा है. एम्पलीट्यूड हमारा 1 सेंटीमीटर है और x एट t बराबर 0 गिवन है. सो फेस कांस्टेंट हमारा 0 है, तो x एट टाइम t हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू टी. नाउ x एट t बराबर एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर x, सो माइनस ओमेगा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाई 16 एंड x एट t बराबर 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू 4/3. हाँ, सो सेंटीमीटर हटा देते हैं यहाँ से. सो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो साइन ऑफ पाई बाई 3 इज √3/2, सो माइनस पाई स्क्वेयर √3/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. पहले भी आया हुआ है, तो पहले इक्वेशन फ्रेम किया हम लोगों ने और फिर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स को यूज़ में लेके, तो थोड़ा डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट हम लोग बोलेंगे. Sodium and copper have work functions less than the ratio of threshold wavelength. So we know threshold wavelength lambda is inversely proportional to phi. Okay, hc by lambda is equal to phi. So lambda is proportional to 1 upon phi. So lambda 1 upon lambda 2 is 4.5 upon 2.3. So approximately 2:1. Next question हम लोग देखें. It takes 4.6 electron volt to remove one of the least tightly bound electrons. So work function is given 4.6 electron volt and Kmax is given 2.2 electron volt. So energy of incident photon is 5 plus Kmax. So that comes out to be 6.8 electron volts. So straightforward question है. A soap bubble of radius r is blown to 2r. Work. So energy of soap bubble is twice of s into 4 pi r square. Two surfaces हैं, so that is 8 pi r square s. Now w is energy expanded is u final minus u initial, so that is 8 pi s 2r square minus r square, so that is 24. s की जगह हमें सिग्मा लेना है, surface tension सिग्मा गिवन है, so सिग्मा, so this is 24 pi sigma r square. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी. तो जब वाटर बाहर निकलेगा 32nd क्वेश्चन में, तो वो थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा. थ्रस्ट फोर्स कितना होता है गाइस? थ्रस्ट फोर्स होता है F थ्रस्ट इज V dm by dt. So dm by dt is rho into area into speed, so that is rho a into 2gh. So
जब फ्लूइड लेफ्ट साइड से बाहर निकलेगा, राइट साइड से बाहर निकलेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो जो नेट फोर्स है वो जाएगा हमारा F1 माइनस F2, दैट इज 2 रो AG H2 माइनस H1। इसको हम लोग H2 बोल देते हैं और इसको हम लोग H1 बोल देते हैं। सो दिस इज 2 रो AGH। तो आउटगोइंग वाटर नेट हमारा इतना फोर्स लगाएगा, तो उतना ही ऑपोजिट फोर्स हमें लगाना पड़ेगा टू कीप द टैंक इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। अ मैन्स नियर पॉइंट इज 0.5 मीटर एंड फार पॉइंट इज 3 मीटर, पार ऑफ स्पेक्टिकल्स lenses required. So near point is 0.5 meter. So U1 for the correct vision near point is 25 centimeter, but here it is given 50 centimeter. Okay, so हमें करेक्शन करने के लिए क्या करना है कि जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनानी है कितने पे, 50 सेंटीमीटर पे। सो फोकल लेंथ इज UV अपॉन U माइनस वी। मैंने 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को रीअरेंज करके लिखा है। सो 25 इंटू 50 माइनस 25 प्लस 50, so this comes out to be plus 50 centimeter. So power is 1/f, so 1/0.5, that is 2 diopter, so plus 2 diopter. And the far point is 3 meters, that means 3 मीटर के बियॉन्ड हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट को देखना है। तो u हमारा इन्फिनिटी है और उसकी इमेज बनानी है हमें 3 मीटर्स पे। ओके, तो ऐसे में जो हमारा लेंस है वो होगा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू -3 मीटर, यानी कि जो पावर होगी वो 1/f, सो दैट इज -1/3, दैट इज -0.33 डायप्टर। तो एक्चुअली एक ही ऑप्शन था -0.33 डायप्टर का, तो अपन फर्स्ट वाली कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट सेकेंड वाली को भी ले सकते थे। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये सब अच्छी तरह से सीखना है हमें। ओके, यदि नहीं आता है तो next 34th, a ray is incident normally on a glass slab 5 centimeter and 1.6. The time taken to travel by a ray from source to surface of the slab is the same as to travel. तो let's say कि source का slab से जो distance है वो x है और slab की thickness suppose t है, तो दोनों में टाइम सेम लग रहा है, तो x अपॉन c इज इक्वल टू t अपॉन c बाय n. So x is nt, that is 1.6 into 5, which is 8 centimeter. Next question पे आ जाए। A particle of mass m is moving with this along a line y equals x plus 4 and the magnitude of the angular momentum. So guys, ये जो line है y equals x plus 4, इस तरह से लाइन है, और ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप परपेंडिकुलर वी नो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ax प्लस by प्लस c स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x1 y1। तो यहाँ पे ax x1 y1 0 है, सो c विच इज़ 4 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² 1² प्लस 1²। इस y इक्वल्स x प्लस 4 को हम इक्वेशन मतलब लिखेंगे, तो y माइनस प्लस x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स 0। सो a इज़ 1, b इज़ -1 एंड c इज़ प्लस 4। ओके, एंड x1 y1 ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो x1 y1 0 है, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस आ रहा है 2√2। Now angular momentum is mv into r perpendicular, so m is 5, v is 3√2 and r perpendicular is 2√2, so that is 60 units. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। रिंग स्टार्ट टू रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h, द वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mr² इंटू v²/r², रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी। सो v की वैल्यू आ रही है हमारी √gh सॉल्व करने पे। The 6-volt Zener diode shown in figure has negligible resistance and a knee current of 5 milliampere. The minimum value of R so that the voltage across it does not fall below 6 volt. तो guys, ये वोल्टेज हम लोग ले लेंगे 6 वोल्ट, तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा 4 वोल्ट, और इधर जो करंट फ्लो कर रही है नी करंट,
दैट इज़ 5 मिली एम्पियर। यहाँ मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, सो यहाँ पे I2 फ्लो कर रही है और ये I1 है और इधर I करंट आ रही है। तो जंक्शन लॉ से I इक्वल्स I1 प्लस I2। नाउ I की वैल्यू है 4/50, I1 की वैल्यू है 0.005 एंड I2 हो जाएगा हमारा 6/R। तो इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये 0.08 माइनस 0.005 इज इक्वल टू 6/R। सो R इज 6/0.075, दैट इज 6000/75 विच इज 80 ओम। तो सॉल्व करने पे 80 ओम आ रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, मॉडरेटली डिफिकल्ट। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर स्टेज इज दिस, द गेन एक्सप्रेस्ड इन dB। सो वोल्टेज गेन इन dB, okay, so dB, voltage gain in dB is 10 log V output upon V input, so that is 10 log 100 which is to the base 10 है, so this is 10 log 10 square to the base 10, that is 20 decibel। तो voltage gain in dB is 20 decibel। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। A bubble is at the bottom of a lake. As the bubble comes to the surface, its radius increases 3 times. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में हमें आइसोथर्मल लेके चलना है यदि कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ बबल है सपोज h डेप्थ पे, जब ये बबल सरफेस पर आ रहा है तो रेडियस 3 टाइम्स हो गई है। ओके, तो रेडियस 3 टाइम्स हो गई है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमारा 27 टाइम्स हो गया है, यानी कि जो प्रेशर है वो P/27 हो गया है। ओके, यहाँ प्रेशर P डैश है और यहाँ प्रेशर P है, तो P डैश P/27 हो गया। और P डैश तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि हम ऊपर आ गए, तो दिस इज P0 और P जो है दैट इज P0 प्लस ρgh अपॉन 27, तो 26 P0 इज इक्वल टू ρgh। नाउ P0 अपने को गिवन है L मीटर ऑफ वाटर कॉलम, सो वी कैन राइट 26 ρgL, that is ρgh, so h is 26L। थोड़ा समझने में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आप करते हो। 40 द टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ और टाइम पीरियड में एरर्स गिवन है और g में एरर निकालनी है। सो वी आर ऑब्जर्विंग g इज प्रपोर्शनल टू L अपॉन t स्क्वेयर, सो डेल्टा g/g into 100 is delta L/L plus twice of delta t/t into 100, so that is delta L/L 0.01 upon 10 plus 0.02 upon 0.5 into 100, so this is 0.1 plus फिर 20/5 4 एक सेकेंड 0.02, so that is 2/20 point twice of delta t, so this is 8, so 8.1%, so nearest is 8%. Now next question, स्फेरिकल वेव फ्रंट शोन इन फिगर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। गाइस जब भी इस तरह से वेव फ्रंट्स प्रेडिक्ट करने हैं तो पहले आप उनको वेव्स रे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि रे के साथ अपन इजीली हैंडल करते हैं। तो ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ये एक पॉइंट सोर्स से इस तरह से ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट सोर्स की इमेज मिरर में बना दीजिए। ये पॉइंट सोर्स की इमेज एस डैश होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो इस तरह से रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट को रेज में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज बनाइए और फिर उसके बाद में वापस से उनके करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स बना दीजिए। तो उनके करस्पॉन्डिंग वापस से वेव फ्रंट्स बनाएंगे तो ये इस तरह से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Young's double slit experiment intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. So I is I max cos square phi by 2, that is Im/4. So cos phi by 2 is equal to 1/2, that is phi by 2, which is 2 pi by lambda into d sine theta. This is 5 by 2 is
pi by 3. So 2 pi cancel. So sine theta is lambda by 3d. So theta is sine inverse lambda by 3d. Next 43rd, ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस. तो F1 हमें गिवन है 256, बीट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, F2 पियानो की फ्रीक्वेंसी है, लेट इट बी F2. Piano की frequency, let it be F2. Now the beat frequency decreases to 2 beats per second and the tension in the piano is slightly increased. So let's assume that F2 is greater than F1. That means F2 is 256 plus 5 hertz. ये हम लोगों ने assume किया. Now on increasing tension, F2 will increase. So beat frequency will increase, but given beat frequency decreases, that means our assumption is wrong. Piano frequency is lesser than the tuning fork frequency. So actually F2 is F1 minus 5, that is 256 minus 5 hertz. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन इसका शीट में सॉल्व करते हैं हम लोग. अ स्टेशनरी सोर्स एमिट्स फ्रीक्वेंसी f, सामने वॉल है और इधर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है u स्पीड से. तो गाइस दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये वॉल है जो कि स्टेशनरी है, सोर्स भी स्टेशनरी है और ये वेव रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ऑब्जर्वर के पास जा रही है. बट ध्यान रहे ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है. तो हमें जब लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग मोशन नहीं होता है तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होता है. तो u का जो इधर कंपोनेंट आएगा, ये थीटा 60 डिग्री है क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो u का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा u cos 60 डिग्री. तो यदि फ्रीक्वेंसी f यहाँ से आ रही है तो ये भी फ्रीक्वेंसी f रिसीव करेगा और ट्रांसमिट भी f ही करेगा क्योंकि सोर्स और वॉल दोनों स्टिल हैं. तो f डैश इज f vs प्लस u cos 60 अपॉन vs और ये हमें गिवन है 11/8 f. सो दैट इज vs प्लस u/2 अपॉन vs इज 11/8. रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारी vs की वैल्यू आ जाएगी, हमारी u की वैल्यू आ जाएगी. u की वैल्यू देखिए सॉल्व कर लीजिए. 8 vs प्लस 4u बराबर 11 vs. तो u की वैल्यू आ रही है हमारी 3 vs/4. तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. 45th, बॉडी में को थ्रो किया है 490 एनर्जी से. तो E इज k प्लस u, दैट इज 490 जूल. नाउ द हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. सो k इज E/2 plus u. So this gives you u equals E/2. So that is mgh equals E/2. So h is E upon 2 mg. E is given guys 490 to mg 9.8. Okay, so 9.8 5s are 49. So this is 50 upon 4 12.5 meter. So that is all for today. All the best for tomorrow. और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज